नमस्कार। अब हम लोग एनआई एक्ट 1881 को ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एनआई इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ईदर ऑन ऑर्डर और टू बियरर। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एनआई इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ईदर ऑन ऑर्डर और टू बियरर। एज पर जस्टिस विलिस जे, NI means an instrument property which is acquired by anyone who takes it in bona fide and consideration, notwithstanding any defect in the title of person from whom he took it. As per Justice Willis J, NI means an instrument property which is acquired by anyone who takes it in bona fide and consideration, notwithstanding any defect in the title of person from whom he took it. MI का NI था, चोरी हो गया और चोर सी से गुड्स खरीदा और एनआई दे दिया। सी ओनर बन गया क्योंकि ही पेड कंसिडरेशन दैट इज गुड्स एंड इन बोनाफाइड। कमिंग टू द डिफरेंस चार्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट इज सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सेक्शन 5। प्रॉमिसरी नोट, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional promise signed by the maker to pay certain sum of money to certain person or to his order or to the bearer of instrument. Maker is the payer. Liability of maker is primary and absolute. Cannot be drawn in sets. No notice of dishonor is required. In case of bills of exchange, an instrument in writing containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money to a certain person or to his order or to the bearer of instrument. Maker is the payee. Liability of maker is secondary and conditional because endorsee can demand from the drawer only when drawee dishonors. Can be drawn in sets and notice of dishonor is required. Once again, promissory note is section 4, instrument in writing containing unconditional promise signed by the maker to pay certain sum of money to certain person or to his order or to the bearer of instrument. Maker is the payer. Liability of maker is primary and absolute. Cannot be drawn in sets. Notice of dishonor is not required. In case of bills of exchange, section 5, instrument in writing containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money to certain person or to his order or to the bearer of instrument. Maker is the payee. Liability of maker is secondary and conditional because endorsee can demand from drawer only when drawee dishonors. Endorser can be drawn in sets and notice of dishonor is required here. So let's move to section 6. Section 4 is promissory note, section 5 is bills of exchange, section 6 is check. Bills of exchange drawn on specified banker and payable on demand is check. What is a check? Section 6 is check. Bills of exchange drawn on specified banker and payable on demand. Now there is two types of check. One is truncated check and another is check in electronic form. Truncated check is the check with clearing house. जब फिजिकल चेक ही ट्रंकेटेड चेक होते हैं लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भेजा जाता है क्लियरिंग हाउस RBI एंड दे स्टिल हैव द स्टेटस ऑफ चेक। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या रोल है? Check made using asymmetric crypto system. A check is made using asymmetric crypto system consisting of private key to create digital sign and public key to verify digital sign. Now difference chart of bills of exchange and check. Bills of exchange is section 5. Check is section 6. Bills of exchange can be drawn on anybody, but check can be drawn only on a specified banker. Bills of exchange is payable on maturity, but check is payable on demand. 3 grace days is allowed in case of bills of exchange, but no grace day in case of check. In case of bills of exchange, it requires revenue stamp, which depends on the value of transactions, but same is not required in the check.
No concept of stop payment in case of bills of exchange, but there is a concept of stop payment in case of check. Check payment can be stopped by giving instruction of stop payment to the banker. In bills of exchange, there is no crossing of bill, but in check, crossing in two ways: general crossing and specific crossing. Again, let's study the difference chart of bills of exchange and check. Bills of exchange section 5, check is section 6. Bills of exchange can be drawn on anybody, but check cannot be drawn on anybody, but can be drawn only on specified banker. Payable on maturity, payable on demand. 3 grace days is allowed, no grace day is allowed. Requires revenue stamp, which depends on the value of transaction. There is no requirement of a revenue stamp. No concept of stop payment. There is a concept of stop payment. Check payment can be stopped by giving instruction of stop payment to banker. There is no crossing of bill, but there is a crossing in two ways in check: general crossing and specific crossing. Now moving further, what is a crossing of check and how many types of it? Crossing of check is mainly of two types: general crossing, specific crossing. What is general crossing? To transfer parallel line, preferably on the top left hand side of check, with or without any words. General crossing is to transfer parallel line, preferably on top left hand side of check, with or without any words. ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन है पेइंग बैंकर को कि काउंटर में किसी को भी पैसा नहीं दे देना. नाउ स्पेसिफिक क्रॉसिंग. स्पेसिफिक क्रॉसिंग कंटेन्स बैंक नेम who will only be allowed to act as a collecting banker. Specific crossing contains a bank name who will only be allowed to act as a collecting banker. स्पेसिफिक क्रॉसिंग ये इंस्ट्रक्शन है पेइंग बैंकर को कि कलेक्टिंग बैंकर को ही पे करो बस, और किसी और को नहीं. नाउ जनरल क्रॉसिंग, पेइंग बैंक बस कलेक्टिव बैंकर को देगा. इसका मतलब होल्डिंग कलेक्टिंग बैंकर के पास जाएगा, जो होल्डर का अकाउंट क्रेडिट कर देगा आफ्टर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम पेइंग बैंकर. जनरल क्रॉसिंग, पेइंग बैंक बस कलेक्टिंग बैंक को देगा. इसका मतलब होल्डर कलेक्टिंग बैंकर के पास जाएगा, जो होल्डर का अकाउंट क्रेडिट कर देगा आफ्टर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम पेइंग बैंकर. नाउ जनरल क्रॉसिंग जिसमें अकाउंट पे लिखा होगा, तो इसमें भी वही सब चीज़ सेम होगा जो कि जनरल क्रॉसिंग में होता था, यानी कि पेइंग बैंकर कलेक्टिंग बैंकर को देगा और होल्डर कलेक्टिंग बैंकर के पास जाएगा और कलेक्टिंग बैंकर होल्डर को पैसा क्रेडिट कर देगा आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब आफ्टर गेटिंग पेमेंट फ्रॉम पेइंग बैंक. लेकिन अगर हम लोग अकाउंट पे ही लिख देते हैं, इट मीन्स इट इज़ नॉट फर्दर इंडोर्समेंट इज़ पॉसिबल. तो फर्दर इंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं रहता है. SBI स्पेशल क्रॉसिंग में भी वही होगा कि पेइंग बैंक बस SBI को देगा, और SBI को अगर हम लोग SBI अकाउंट पे ही लिखते हैं तो फर्दर इंडोर्समेंट इज़ नॉट पॉसिबल. नॉट निगोशिएबल, नन ओनर कैन नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप इवन इफ अदर पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन. नन नेगोशिएबल, नन ओनर कैन नॉट ट्रांसफर ओनरशिप इवन इफ other person or other party acted in good faith or given consideration. Okay, now endorsement ka types, 6 types of endorsement are there. What is the endorsement? Endorsement means signing on the back of the instrument. There are 6 type of endorsement. Blank or general endorsement contains only sign of endorser. बस इसमें endorser का साइन होगा. इंडोर्समेंट का मतलब क्या था? इंडोर्समेंट मीन साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का बैक में आप साइन कर दोगे, इंडोर्समेंट हो जाता है. लेकिन ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट में क्या होता है? चेक पूरा ब्लैंक रहेगा, अगर आपको इंडोर्समेंट करना है तो पीछे आप साइन कर दो, इंडोर्सर साइन कर देगा, बस वो इंडोर्स हो जाएगा. तो उसको ब्लैंक और जनरल इंडोर्समेंट कहते हैं. तो इंडोर्सी का नाम नहीं है, इस कारण ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. नाउ स्पेशल फुल इंडोर्समेंट कंटेन्स नेम ऑफ द इंडोर्सी एंड इट इज़ ऑल्सो पेएबल ऑन हिज ऑर्डर, यानी लिखा रहेगा पे भरत और टू हिज ऑर्डर. रिस्ट्रिक्टिव, पेएबल टू पर्टिकुलर इंडोर्सी ओनली, बस पर्टिकुलर इंडोर्सी को ही इंडोर्स करो और किसी को नहीं. एग्जाम्पल में जैसे पे टू भरत ओनली, पे टू भरत ओनली. फिर है सांस रिकॉर्ड्स, सांस प्राइज फैकल्टेटिव. सांस रिकॉर्ड्स, इंडोर्सर कैन नॉट हेल्ड लाइबल एंड कैन नॉट बी sued बाय सब्सिक्वेंट पार्टीज इवन इफ बिल इज डिसऑनर्ड. ओके, अगर कोई आदमी सन्स रिकॉर्ड्स कर देता है तो वो कैनॉट बी हेल्ड लायबल एंड कैनॉट बी sued बाय सब्सिक्वेंट पार्टीज इवन इफ बिल इज डिसऑनर्ड. इन केस ऑफ सेंस प्राइज, व्हाट इज सेंस प्राइज? Endorser shall not be held liable for any expenses incurred on the bill
इफ़ इट इज़ डिसऑनर्ड। नॉर्मली जब भी बिल डिसऑनर्ड होता है तो कुछ नोटिंग चार्जर लगता है, वो नोटिंग चार्जर इंडोर्सर ही देता है। लेकिन अगर आदमी ने सन्स फ्राइज लिख के रखा है तो इंडोर्सर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द बिल इफ इट इज़ डिसऑनर्ड, दैट इज नोटिंग चार्जेस। नाउ फैकल्टेटिव यानी अपना सारा राइट को वेव कर दिया। इंडोर्सर वेव्स ऑफ हिज सर्टेन राइट्स। सब्सिक्वेंट पार्टी स्यू कर सकता है इवन इफ विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर। फैकल्टेटिव में तो मज़ेदार हो गया, अगर आपने फैकल्टेटिव लिख दिया है तो आपने सारा ही अपना हक को मार दिया। अब सब्सिक्वेंट पार्टी आपको स्यू कर सकता है इवन विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर। नेगोशिएशन बैक बहुत इंटरेस्टिंग है। ए सोल्ड गुड्स टू बी एंड ड्रू ए बिल ऑन बी एंड इंडोर्स्ड इट टू सी। सी ने डी को दे दिया, डी ने ई को दे दिया, ई ने वापस से सी को दे दिया। यहाँ पर ए सी डी और ई HIDC है। राइट टू स्यू टू देयर प्रायर पार्टी इफ बिल इज डिसऑनर्ड। HIDC के पास क्या राइट है? राइट टू स्यू टू देयर प्रायर पार्टी इफ बिल इज डिसऑनर्ड। अगर ई इंडोर्स कर देता है वापस से सी को तो निगोशिएशन बैक हो जाता है, यानी वापस से चला गया ना, इसीलिए निगोशिएशन बैक हो गया। सर्कुलर एक्शन को रोकने के लिए सी इज़ नॉट अलाउड टू स्यू ई एंड डी, लेकिन अगर ये सेंस रिकॉर्ड्स कर देगा तो ई एंड डी सी को स्यू नहीं कर पाएगा, बट सी ई और डी को स्यू कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होल्डर कौन होता है? पर्सन हैविंग लीगल ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो लीगल ओनर होता है इंस्ट्रूमेंट का उसको हम लोग होल्डर कहते हैं। तो HIDC क्या हुआ? HIDC इज सच ए लीगल ओनर satisfying all three conditions. What are those three conditions? For consideration, good faith and before maturity. Holder in due course or HIDC is such a legal owner satisfying all conditions. Consideration, good faith and before maturity. Let's understand this difference chart. Holder, consideration नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। HIDC, consideration इन्वॉल्व होना ही चाहिए। Holder, good faith इंपॉर्टेंट नहीं है। HIDC, good faith इंपॉर्टेंट है। Holder, every holder is not HIDC. Every HIDC is holder. Holder does not get better title than its transferor, but in case of HIDC gets better title. In case of holder, एक्ट ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देगा होल्डर को, बट एक्ट प्रिविलेज देता है HIDC को। जैसे इन केस ऑफ इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल एंड इरेगुलर मीन्स, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंड इंडोर्स्ड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ होल्डर, अगर ए इनहेरिट्स अ बिल फ्रॉम बी और गेट्स गिफ्ट, ए होल्डर होगा। एंड एग्जाम्पल ऑफ HIDC, ए इंडोर्स बिल, कंसिडरेशन, गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी, देन ए इज HIDC। नाउ ए को बिल मिला गिफ्ट में तो ही इज़ अ होल्डर। ए इनहेरिटेड द बिल, ही इज़ अ होल्डर। ए को मिला बियरर बिल रोड पे गिरा हुआ, नो होल्डर बिकॉज ही इज़ नॉट अ लीगल ओनर। ए इज़ होल्डिंग बिल एज एजेंट कलेक्शन के लिए, नॉट होल्डर। ए के पास बिल है लेकिन कोर्ट ने सारे एसेट्स अटैच कर दिए हैं, नॉट होल्डर। प्रिविलेज ऑफ HIDC इन केस ऑफ इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें अमाउंट फिलअप नहीं रहता लेकिन अमाउंट भरने पर वैलिड हो जाता है। अगर कोई पर्सन उसमें ज़्यादा अमाउंट डाल देता है बियॉन्ड द अथॉरिटी, तो जब इंस्ट्रूमेंट HIDC के पास जाएगा वो प्रायर पार्टी को स्यू कर सकता है फॉर ज़्यादा वाला अमाउंट। एक और बात देखते हैं, इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट इट इज़ इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। वाई इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि इसमें अमाउंट फिलअप नहीं रहता है लेकिन अमाउंट भरने पर वैलिड हो जाता है। अगर कोई पर्सन उसमें ज़्यादा अमाउंट डाल देता है बियॉन्ड द अथॉरिटी, तो जब इंस्ट्रूमेंट HIDC के पास जाएगा तो HIDC कैन sue the prior party. अब है इंस्ट्रूमेंट obtained by unlawful or irregular means. HIDC will always get a better title than its transferor, even if transferor का defective है title. HIDC will always get a better title than its transferor, even if transferor का defective title है. हो सकता है कि उसने चोरी करके अनलॉफुल या इरेगुलर मीन्स से ट्रांसफ़र करा होगा, लेकिन किसी भी केस में HIDC विल ऑलवेज गेट अ बेटर टाइटल देन इट्स ट्रांसफरर, इवन इफ ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव हो गया है। एक बार HIDC के पास गया तो HIDC कैन स्यू प्रायर पार्टीज। इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड इंडोर्स्ड विदाउट कंसिडरेशन।
यदि इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या फिर इंडोर्स करते हैं बिना कोई कंसिडरेशन के, तो इंस्ट्रूमेंट अगर HIDC के पास गया तो HIDC कैन स्यू एनी ऑफ द प्रायर पार्टी। सिंपल बात है, अगर इंस्ट्रूमेंट HIDC के पास गया तो HIDC कैन स्यू एनी ऑफ इट्स पार्टी, प्रायर पार्टी। नाउ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय ड्रॉअर इन फिक्टिशियस ने कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है लाइबिलिटी टुवर्ड्स HIDC, इवन इफ बाद में पता चलता है कि ड्रॉअर का नाम फिक्टिशियस था। हाउएवर ड्रॉई का लाइबिलिटी एंड हो जाएगा टुवर्ड्स ड्रॉयर। ड्रॉई का लाइबिलिटी टुवर्ड्स ड्रॉयर खत्म हो सकता है, बट नो वन कैन डिनाई द लाइबिलिटी टुवर्ड्स HIDC, इवन इफ बाद में पता चलता है कि ड्रॉअर का नाम फिक्टिशियस था। इन केस ऑफ एस्क्रो अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, इवन इफ ड्रॉअर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ड्रॉई का लाइबिलिटी तो खत्म, बट नो वंस लाइबिलिटी विल एंड टुवर्ड्स HIDC। इन केस ऑफ एस्क्रो या कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि तुम ये कंडीशन पूरा करोगे तभी तुमको ये फ़ायदा मिलेगा, तभी तुमको हम पैसा देंगे, तभी तुमको पे करेंगे, तो इवन इफ ड्रॉअर फेल्स टू फुलफिल दोज कंडीशंस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ड्रॉई का लाइबिलिटी तो खत्म हो जाएगा, बट नो बडीज लाइबिलिटी विल एंड टुवर्ड्स HIDC। अब एग्जाम्पल ऑफ इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। ए ब्लैंक बिल एक्सेप्ट करता है बी से क्योंकि ए ने 3000 का गुड्स खरीदा था बी से। ए ने 3000 भरने का अथॉरिटी दिया, बट बी ने 5000 भर दिया जो कि रेवेन्यू स्टैम्प से सपोर्टेड था। बी ने सी को दिया फॉर कंसिडरेशन एंड गुड फेथ एंड सी ने डी को दे दिया। सी और डी यहाँ पर HIDC है। डी कैन स्यू सी बी ए फॉर 5000, सी कैन स्यू बी ए फॉर 5000 एंड बी कैन स्यू फॉर ए ओनली फॉर 3000। अगर ए 5000 दे दिया सी या डी को तो ए स्यू कर सकता है बी को 2000 के लिए। लेकिन व्हाट इफ सी वॉज अवेयर दैट बी फिल्ड अप फ्रॉडुलेंटली, देन ओनली डी इज विल बी HIDC। बट इन केस व्हाट इफ सी वॉज नॉट अवेयर बट डी वॉज अवेयर, बोथ सी एंड डी विल बी HIDC। ऑल्दो डी को मालूम था बट ही डिड नॉट एक्वायर फ्रॉम बी। अब इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल इरेगुलर मीन्स का एग्जाम्पल, ए एक्सेप्टेड बिल फ्रॉम बी, कंसिडरेशन भी दे दिया, लेकिन स्टॉलन बाय सी, सी ने डी को दे दिया, डी बीइंग HIDC कैन स्यू ABC। नाउ बाउंसिंग ऑफ चेक, ड्रॉवर इशूड ए चेक फ्रॉम द बैंक जहां वो अपना अकाउंट मेंटेन करता है। चेक इशूड टू पेई, विद इन वैलिडिटी पेई प्रेजेंटेड चेक इज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन ड्रॉयर्स अकाउंट। पेई शुड विद इन 30 days of receiving such information give a written notice demanding payment। अब ड्रॉवर विद इन 15 days of receipt of notice should discharge payee, नहीं तो he shall be liable for maximum 2 साल का imprisonment और fine twice the amount of the check। ड्रॉवर issued a check from the bank जहाँ वो अपना अकाउंट मेंटेन करता था। check issued to payee, within validity payee presented the check and check is dishonored due to insufficient fund in drawer's account। Payee should within 30 days of receiving such information give a written notice demanding payment। अब ड्रॉयर विद इन 15 days of receipt of notice should discharge payee, नहीं तो he shall be liable for maximum 2 साल का imprisonment और twice the amount of the check। एग्जाम्पल है, एडवांस पेमेंट किए सप्लायर को चेक से, चेक बाउंस हो गया। सेक्शन 138 इज़ नॉट अट्रैक्टेड, वाई? लाइबिलिटी नहीं था ना, इसलिए। अगर लाइबिलिटी होगा तभी सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 138 क्या था? सेक्शन 138 बाउंसिंग ऑफ चेक। ड्रॉवर इशू करता है चेक जहाँ वो अपना अकाउंट मेंटेन करता है वहाँ से, और विद इन वैलिडिटी पेई प्रेजेंट भी करता है चेक, तब भी चेक बाउंस हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। तो वहाँ से पेई 30 दिन के अंदर रिटर्न नोटिस भेजेगा डिमांडिंग पेमेंट। अब ड्रॉयर विद इन 15 days ऑफ सच रिसिप्ट ऑफ नोटिस पेई को डिस्चार्ज कर देगा, नहीं तो ही शैल बी लायबल फॉर मैक्सिमम 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। एग्जाम्पल था चेक इशूड टू GF, गर्लफ्रेंड को हम लोग चेक दिए हैं गिफ्ट और या फिर लोन दिए हैं एडवांस, तो बाउंस हो गया। सेक्शन 138 नॉट अट्रैक्टेड बिकॉज लाइबिलिटी नहीं था। चेक इशू करे और बैंक को बोल दिए स्टॉप पेमेंट, और सामने वाले को भी बोल दिए कि बाद में जाना रहे बैंक, लेकिन वो गया चेक प्रेजेंट करा, बाउंस हो गया। सेक्शन 138 अट्रैक्टेड इन केस ऑफ मोदी सीमेंट लिमिटेड एंड कुचिल कुमार नंदी। इन केस ऑफ मोदी सीमेंट लिमिटेड एंड कुचिल कुमार नंदी, इस केस में क्या हुआ था, चेक इशू किए
और बैंक को बोल दिए स्टॉप पेमेंट, और बगल वाले को बोल दिए कि तुम बैंक मत जाना रहे अभी, बाद में जाना, लेकिन वो चला गया और चेक बाउंस हो गया, तो सेक्शन 138 अट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ सेक्शन 139 क्या कहता है? कोर्ट हमेशा यही प्रजम्पशन लेगा कि चेक डिसऑनर हुआ या फिर जो हुआ चेक डिसऑनर उसमें लायबिलिटी था, क्योंकि सेक्शन 138 क्या बोल रहा था, अगर लायबिलिटी नहीं रहता है तो सेक्शन 138 इज़ नॉट अट्रैक्टेड। लेकिन फिर सेक्शन 139 कहता है कि कोर्ट हमेशा यही प्रजम्पशन लेगा कि चेक डिसऑनर जो हुआ था यानी बाउंसिंग वाज द लायबिलिटी होल्डर, ठीक है, अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड। सेक्शन 140 कहता है इट इज़ नॉट अ डिफेंस टू ड्रॉवर दैट ही हैड नो आइडिया दैट इशूड चेक विल गेट बाउंस्ड। सेक्शन 141 कहता है अगर कंपनी का चेक बाउंस होता है तो सेक्शन 138 का लायबिलिटी होगा कंपनी पर एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर जो इंचार्ज था जब चेक इशू हुआ। सेक्शन 141 कहता है कि कंपनी का चेक बाउंस होता है तो सेक्शन 138 लायबिलिटी होगा किस पर, कंपनी पर या ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पर जो इंचार्ज था जब चेक इशू हुआ। सेक्शन 142 कहता है कोर्ट जहां पर 138 का सेक्शन ट्राई किया जाएगा यानी कि केस लड़ा जाएगा, उस कोर्ट जहां पर लड़ा जाएगा उसको हम लोग सेक्शन 142 में बात करते हैं। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 143 में, जो कह रहा है केस रिलेटेड टू बाउंसिंग ऑफ चेक शैल बी फाइल्ड इन अ कोर्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटियल मजिस्ट्रेट। Case related to bouncing of check shall not be filed in a court not below the rank of judicial magistrate of first class or metropolitan magistrate. सेकेंड पॉइंट, अगर कोर्ट चाहे तो वो समरी ट्रायल करा सकता है स्पीडेड डिस्पोजल ऑफ केस, लेकिन इस केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट एक्सीड 1 ईयर एंड फाइन ग्रेटर देन 5,000। अगर कोर्ट चाहे तो वो समरी ट्रायल करा सकता है स्पीडेड डिस्पोजल ऑफ केस, लेकिन इस केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कैनॉट एक्सीड 1 ईयर एंड फाइन कैनॉट बी ग्रेटर देन 5,000। समरी ट्रायल स्टार्ट होने के बावजूद अगर कोर्ट चाहे तो इट कैन कन्वर्ट इट टू नॉर्मल ट्रायल, ठीक है। सेक्शन 143 केस रिलेटेड टू बाउंसिंग ऑफ चेक शैल बी फाइल्ड इन अ कोर्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटियल मजिस्ट्रेट। अगर कोर्ट चाहे तो समरी ट्रायल करा सकता है यानी स्पीडेड डिस्पोजल ऑफ केस, लेकिन इस केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कैनॉट एक्सीड 1 ईयर एंड फाइन कैनॉट एक्सीड 5,000। समरी ट्रायल के स्टार्ट होने के बावजूद अगर कोर्ट चाहे तो इट कैन कन्वर्ट इट एनी टाइम इनटू नॉर्मल ट्रायल। सेक्शन 143A ट्रायल कोर्ट के पास पावर है टू डायरेक्ट ड्रॉवर टू डिपॉजिट दैट इज पे टू पेई एंड एंटरिम कंपनसेशन। एंटरिम कंपनसेशन 20% ऑफ चेक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे करो विद इन 60 डेज ऑफ सच ऑर्डर, लेकिन 30 डेज एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अगर ड्रॉवर सफिशिएंट कॉज दिखाता है। अगर फाइनल ऑर्डर में ड्रॉवर को एक्विट कर देते हैं, ड्रॉवर बाइज्जत बरी हो जाता है, तो पेई शैल रिफंड द अमाउंट पेड बाय ड्रॉवर विथ इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेलिंग बैंक रेट ऑफ RBI एट स्टार्ट ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 148 अगर अपील फाइल करता है ड्रॉवर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट फाइंडिंग हिम गिल्टी, जिस ट्रायल कोर्ट में उसको गिल्टी मान लिया गया था अब वो अपील फाइल कर रहा है, तो अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि टू ऑर्डर अपीलेंट यानी टू ऑर्डर ड्रॉवर टू डिपॉजिट मिनिमम 20% ऑफ टोटल कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय ट्रायल कोर्ट। अब टाइम लिमिट है टू डिपॉजिट 60 + 30 डेज, वैसा ही जैसे पहले था। अगर अपीलेट कोर्ट ड्रॉवर को एक्विट करता है फाइनल ऑर्डर में, देन पेई शैल रिफंड अमाउंट पेड बाय ड्रॉवर प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेलिंग बैंक रेट ऑफ RBI एट स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अमाउंट रिफंड करेगा पेई विद इन 60 + 30 डेज। एज पर सुप्रीम कोर्ट देयर कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ 143A। सेक्शन 148 अगर अपील करता है ड्रॉवर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट फाइंडिंग हिम गिल्टी, अपीलेंट कोर्ट के पास पावर है टू ऑर्डर अपीलेंट ड्रॉवर टू डिपॉजिट मिनिमम 20% ऑफ टोटल कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय ट्रायल कोर्ट। टाइम लिमिट टू डिपॉजिट 60 डेज + 30 डेज। अगर अपीलेट कोर्ट ड्रॉवर को एक्विट कर देता है, देन पेई शैल रिफंड अमाउंट पेड बाय ड्रॉवर प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेलिंग रेट ऑफ RBI एट स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब जो अमाउंट रिफंड करेगा पेई वो करेगा विद इन 60 डेज + 30 डेज। ओके, फास्ट करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं 143A और 148 का। 143A ट्रायल कोर्ट के पास पावर है टू डायरेक्ट ड्रॉवर टू डिपॉजिट दैट इज पे टू पेई एंड एंटरिम कंपनसेशन। एंटरिम कंपनसेशन कैन नॉट बी एक्सीडेड 20% ऑफ चेक। पे करो विद इन 60 डेज ऑफ सच ऑर्डर
नहीं तो एडिशनल 30 डेज मिलेगा अगर ड्रॉअर सफिशिएंट कॉस्ट दिखाता है तो। अगर फाइनल ऑर्डर में ड्रॉअर को एक्विट कर देते हैं तो पेई शैल रिफंड बैक द होल अमाउंट विथ इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेलिंग बैंक रेट ऑफ RBI एट स्टार्टिंग ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब 148 क्या कह रहा था, अगर अपील करता है ड्रॉअर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट फाइंडिंग हिम गिल्टी, अपीलेट कोर्ट के पास पावर है टू ऑर्डर अपीलेंट यानी ड्रॉअर टू डिपॉजिट मिनिमम 20% ऑफ टोटल कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय ट्रायल कोर्ट। टाइम लिमिट है 60 + 30 डेज। अगर अपीलेट कोर्ट ड्रॉअर को एक्विट करता है फाइनल ऑर्डर में, देन पेई शैल रिफंड अमाउंट पेड बाय ड्रॉअर प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेलिंग बैंक रेट ऑफ RBI एट स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अमाउंट रिफंड जो करेगा पेई वो करेगा विद इन 60 डेज + 30 डेज। एज पर द सुप्रीम कोर्ट देयर कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ 143A। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, when the bill apart from containing drawings name and acceptance also contains name and address of additional person, when the bill apart from containing drawings name acceptance also contains name and address of additional person, then this additional person is drawee in case of need. Drawee in case of need, these are guarantor on behalf of drawee. These are guarantor on behalf of drawee, which means if bill is dishonored, then drawee can also claim from drawee in case of need. So drawee in case of need, when the bill apart from containing drawee's name, acceptance also contains name and address of additional person. This additional person is drawee in case of need. These are guarantor on behalf of drawee, which means if bill is dishonored, then drawee can also claim from drawee in case of need. Now next, acceptor for honor and supra protest. ड्रॉवर बिल ड्रॉ किया ड्रॉई पर एंड प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ड्रॉई फेल्स टू एक्सेप्ट द बिल, दिस इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। नाउ ड्रॉवर विल रजिस्टर सच डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस विद ए नोटरी पब्लिक, दिस इज कॉल्ड नोटिंग और प्रोटेस्ट। इफ थर्ड पर्सन एक्सेप्ट्स द बिल ऑन सच प्रोटेस्ट मेड बाय ड्रॉई, देन एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पर्सन to honor bill, this is called supra protest and third person is called acceptor for honor। केस में क्या हो रहा है, ड्रॉवर बिल ड्रॉ किया ड्रॉई पर एंड प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज एक्सेप्टेंस। ड्रॉई फेल्स टू एक्सेप्ट द बिल, दिस इज कॉल्ड डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अब ड्रॉवर विल रजिस्टर सच डिसऑनर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस विद ए नोटरी पब्लिक, दिस इज नोटिंग और प्रोटेस्ट। इफ थर्ड पर्सन एक्सेप्ट बिल ऑन सच प्रोटेस्ट मेड बाय ड्रॉई, देन एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पर्सन to honor bill, this is called supra protest and third person is called acceptor for honor। Now again payment for honor, drawer या holder present bill to drawee for its payment on its maturity date, drawee refuses to pay, it is dishonor by non payment। Now drawer या फिर holder नोटरी प्रोटेस्ट करेगा, नोटरी में जाकर नोट कराएगा, नहीं तो प्रोटेस्ट करेगा विद नोटरी पब्लिक। थर्ड पर्सन टू ऑनर द बिल, अगर थर्ड पर्सन टू ऑनर द बिल इफ मेक्स पेमेंट, देन इट इज कॉल्ड सुपरा प्रोटेस्ट, सच पर्सन इज कॉल्ड पेमेंट फॉर ऑनर। अगर नोट या फिर बिल जो पेएबल है नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट, द ड्यू डेट इज काउंटेड फ्रॉम डेट मेंशन इन द बिल, दैट इज डेट ऑफ ड्राइंग। अगर नोट बिल इज मेड पेएबल आफ्टर स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर साइट है तो ड्यू डेट इज काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई। इफ नोट या बिल इज मेड पेएबल आफ्टर स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर साइट, देन ड्यू डेट इज काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई। नोट या बिल is made payable after stated after a certain event, it is counted from date of acceptance by drawee. Note या bill is made payable after sight and has been accepted for honor, तो maturity will be with the day on which it was so accepted। अगर maturity date public holiday होता है तो immediately preceding day, अगर maturity date sudden holiday होता है तो immediately next day।